السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز کریں اس دعا کے ساتھ۔ اے اللہ، اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ بطور قوم ہم میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھ۔ آمین ثم آمین۔ بی آر ٹی منصوبے کا افتتاح آج ہوگا۔ 27.5 کلومیٹر پر مشتمل منصوبے پر تقریباً 70 ارب روپے لاگت آئی ہے۔ اس میں 31 اسٹیشنز، 140 اسٹاپ، منصوبے کا 8 کلومیٹر فلائی اوور اور 3 کلومیٹر انڈر پاس پر مشتمل ہے۔ پشاور والوں کی مشکل آسان ہو گئی۔ 3 سال پہلے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن سے شروع ہونے والا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا عظیم و شان منصوبہ بس ریپڈ ٹرانزٹ مکمل ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان جمعرات کو افتتاح کریں گے۔ منصوبے کی تعمیر کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے 2013 میں ایشیائی بینک سے تقنیے کی مدد کی درخواست کی، جس کا مقصد پشاور کے بد انتظامی اور خستہ حال شہری نقل و حمل کے نیٹ ورک کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا تھا۔ منصوبے کا افتتاح پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی صوبائی حکومت نے ایشیائی بینک کے تعاون سے 2017 میں شروع کیا تھا۔ اس منصوبے میں تقریباً 70 ارب روپے لاگت آئی ہے، جو 27.5 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس میں 31 اسٹیشن جبکہ 140 اسٹاپ ہیں۔ منصوبے کا 8 کلومیٹر فلائی اوورز اور 3 کلومیٹر انڈر پاس پر مشتمل ہے۔ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک کا فاصلہ 850 میٹر ہے۔ پی ڈی اے نے یہ منصوبہ تکمیل کے بعد ٹرانس پشاور کے حوالے کر دیا اور اس میں انٹیلیجنس ٹریکنگ سسٹم کو فعال کر دیا ہے۔ اس منصوبے کی تعمیر پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی پی ڈی اے نے ایشیائی بینک کے تعاون سے 2017 میں شروع کی۔ ایک اندازے کے مطابق بی آر ٹی میں 3,40,000 مسافر روزانہ سفر کریں گے، جس کے لیے 1 لاکھ کارڈز فروخت کیے جا چکے ہیں۔ بی آر ٹی کی نگرانی کے لیے 750 سیکیورٹی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ بی آر ٹی سروس صبح 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک عوام کو سفری سہولیات مہیا کریں گی۔ بی آر ٹی پشاور شہر کے تمام اہم حصوں کو منسلک کرے گی، جس سے نہ صرف پشاور کے شہریوں کو بلکہ باہر سے آنے والے مسافروں کو بہتر اور آسان سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ معذور افراد کے لیے بی آر ٹی میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام بسیں ایئر کنڈیشنڈ اور وائی فائی کی سہولیات سے آراستہ ہوں گی۔ تمام اسٹیشنوں پر مسافروں کے لیے بیت الخلاء قائم کیے گئے ہیں۔ یہ بسیں ڈیزل الیکٹرک پلگ ان ہائیبرڈز ہیں، جو کہ ایندھن کی مد میں خاطر خواہ بچت کے ساتھ ساتھ ماحول دوست ہیں۔ بسوں کے لیے چارجنگ اسٹیشن بھی تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ گاڑیوں کی بیٹری ریچارج کی جا سکیں۔ یہ تمام بسیں ماحول دوست ہیں اور شہر میں فضائی آلودگی کو کم کریں گی۔ منصوبے کے ساتھ ساتھ بائی سائیکل ٹریک بھی بنایا گیا ہے۔ پشاور کے شہریوں نے منصوبے کی تکمیل کو بے حد سراہا اور عمران خان کے ویژن کی تعریف کی۔ پشاور کی عوام کے لیے خوشخبری، پشاور کا میگا بس ٹرانزٹ منصوبہ ہو گیا ہے تیار۔ تاخیر سے تیار ہونے والا پروجیکٹ کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ پروجیکٹ کب شروع ہوا اور کب تیار ہوا، یہ سب بتائیں گے اویس محمود اپنی رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ 2017 میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے دور میں اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی اور 6 ماہ میں اس کو مکمل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تاہم 2.5 سال گزرنے کے بعد یہ میگا پروجیکٹ تکمیل کے مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ منصوبے پر ابتدائی رقم کا تخمینہ 33 ارب روپے لگایا گیا۔ تاہم اس منصوبے میں ناقص پلاننگ اور ڈیزائننگ میں متعدد بار تبدیلی کی وجہ سے منصوبے کی لاگت 66 ارب روپے پر پہنچ گئی۔ صوبائی حکومت کے اس واحد میگا پروجیکٹ کے افتتاح پر پشاور کے شہری خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تو بہت جو ہے ہر ملک میں اور ہر جگہ پہ جو ہے حالات کے حوالے سے مختلف چیم و گوئیاں بھی ہوتی ہے، مختلف پروجیکٹ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن اور اس طرح دیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک بہترین منصوبہ ہے، چاہے دیر سے ہو، دیر آئے پر درست آئے والی بات ہے۔ تو یہ منصوبہ میرے خیال میں کہ بہت بہتر چلے گا۔ ایک تاریخ میں جو ایک بار ہوئی تھی 14 اگست تو ہمیں پاکستان ملا تھا، اب جو 14 اگست آ رہی ہے تو ہمیں ہماری بی آر ٹی مل رہی ہے، تو یہ پشاور کے شہریوں کے لیے، خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے بہت ہی اچھا ایک موقع ہے کہ وہ اس میں سفر کریں۔ ایک ویل مینوفیکچر، ویل فیسیلیٹیڈ جو ان لوگوں نے ہمارے لیے بنایا، حکومت نے ہمارے لیے تیار کی ہے بی آر ٹی۔ خیر دیر آئے درست آئے، لیکن اب بن گئے تو حکومت کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ معاون خصوصی برائے اطلاعات اور بلدیات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ آج بی آر ٹی مکمل ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی آر ٹی چلے گی تو اپوزیشن جلے گی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پشاور کے شہریوں کو بالخصوص اور پورے خیبر پختونخوا اور پاکستانیوں کو، کیونکہ اس پروجیکٹ کو ایسے پورٹرے کیا جاتا رہا کہ یہ پتہ نہیں ممکن نہیں ہے اور
یہ ہو نہیں سکتا اور یہ عوام کے لیے کوئی اس کی فیزیبلٹی نہیں ہے. تو آج کا دن یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ایک بلیسنگ ہے. اس پروجیکٹ سے جو اینڈ یوزر ہے ہمارے پشاور کے سٹیزن اور پختونخوا کے, ان کے لیے ایک گیم چینجر ہے. میگا پروجیکٹ بی آر ٹی منصوبے کے افتتاح کا اعلان تو کر دیا گیا ہے, تاہم منصوبے میں شامل 3 ڈیوز, کمرشل پلازے اور سائیکل ٹریک پر تاحال کام مکمل نہ ہو سکا, جبکہ حکومت نے بغیر سبسڈی کے منصوبہ چلانے کا دعویٰ کیا تھا. تاہم کمرشل پلازے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے بسیں چلانے کے لیے بجٹ میں 2 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. پشاور کے عوام کے لیے ریپڈ بس سروس کا سفر نیا ہوگا, کیونکہ اب اس بسوں میں نہ تو کنڈکٹر آپ سے پیسے مانگے گا اور نہ ہی آپ کا زائد وقت خراب ہوگا. کیمرامین اسد عابد کے ساتھ اویس محمود, سچ ٹی وی, پشاور. خیبر پختونخوا میگا بس ٹرانزٹ کا آج افتتاح ہو رہا ہے. 220 بسز کے ساتھ اس منصوبے میں سائیکل ٹریک بھی شامل ہے. مزید کیا کچھ ہے اور اس کی لمبائی کتنی ہے, تفصیلات بتائیں گے واجد شہزاد. پشاور کی عوام کے لیے بڑی خوشخبری, پشاور کا میگا ٹرانزٹ منصوبہ ہو گیا ہے تیار. 27 کلومیٹر پر مشتمل منصوبے میں 220 بسیں, 31 سٹاپ, 2.5 کلومیٹر پر مشتمل سائیکل ٹریک, جبکہ ہر اسٹیشن کے درمیان کل 900 میٹر کا فاصلہ ہے. 30 اسٹیشنز, 27 کلومیٹر کا کوریڈور, اور اس کے علاوہ جو آئی ٹی ایس کا سسٹم ہے اس کا یہ فلی فنکشنل ہو رہا ہے. ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ گریجولی اس کی رائڈرشپ کیپیسٹی 3,60,000 پیسنجرز پر ڈے ہے. مسافروں کے لیے ہر 4 منٹ بعد چمکنی سٹاپ سے بس روانہ ہوگی, جو ہر سٹاپ پر مسافروں کو سوار اور اتارے گی, جبکہ ایک گاڑی چمکنی سٹاپ سے روانہ ہوگی جو کہ صرف 8 بڑے سٹاپ پر رکے گی, اور آخر میں کارخانوں مارکیٹ سے ہوتی ہوئی واپس وہاں سے مسافروں کو لے کر چمکنی سٹاپ پر پہنچے گی. ہر 4 منٹ بعد ایک گاڑی جو ہے وہ ٹریول کرے گی, اور اس کا جو یوزولی پشاور کی جو سروے ہوئی ہے وہ 14 کلومیٹر پر گھنٹے کے رفتار سے گاڑیاں جاتی تھی. اس سے 25 کلومیٹر سے زیادہ سپیڈ پہ, یعنی 25 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ کی سپیڈ پر جو ہے یہ گاڑیاں پہنچ سکیں گی. منصوبے میں زو کارڈ کو متعارف کروایا گیا ہے. زو پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چلنا. اسٹیشن پر موجود کاؤنٹر میں رقم جمع کروا کر کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے. یاد رہے, ایک شناختی کارڈ پر صرف ایک کارڈ جاری ہوگا, جبکہ باہر سے آنے والے مسافر ٹکٹ لے کر سفر کر سکیں گے. کیمرامین ارسلان طارق کے ساتھ واجد شہزاد, سچ ٹی وی, پشاور. اسلام آباد میں چیئرمین این ٹی ایم اے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. امید رکھے ہوئے ہیں 31 اگست کو. اسی طرح لیمڈا ایک دوسری پیسٹیسائیڈ ہے جو 1 لاکھ لیٹر میں دی گئی ہے. سپریئرز کا میں ذکر کر چکا ہوں, اور 20 اور انشاءاللہ آ جائیں گے 31 اگست تک. اور 17 یونٹس ڈرون کے جو ہیں سپرے کے لیے, یہ بھی آج کی فلائٹ کے اندر آئے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے چیزوں کی کمی آ رہی ہے تو میں نے صرف ایک آدمی کی طرف دیکھا. وہ میرے دوست, میرے بھائی, ہمارے دوست ملک کے امبیسڈر مسٹر یاؤ ہیں. جب بھی میں نے انہیں کال کیا مجھے پازیٹیو رسپانس آیا. میں پاکستان کے لوگوں کی طرف سے, پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے, این ڈی ایم ای کی طرف سے, اور میں اپنی طرف سے گورنمنٹ آف چائنا کا اور چائنیز لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس مشکل کے مرحلے پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کووڈ اور لوکس سے ہمیں کافی حد تک نجات دے دی ہے. لیکن میں اپنے بھائیوں سے یہ اور بہنوں سے, بچوں سے, بڑوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ مرحلہ کووڈ کا بھی ختم نہیں ہوا, یہ ریس جاری رہے گی. اس لیے جب بھی باہر نکلیں احتیاط کریں, ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ رکھیں اور ماسک استعمال کریں تاکہ اس بیماری کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ ملکوں میں یہ بیماری جو ہے دوبارہ آ گئی ہے, تو اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہی ہے. میں آپ کو یہ بھی خوشخبری دے دوں کہ ایف اے او کی رپورٹ ورلڈ. مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 753 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,475 ہے. صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,64,000
60 तक जा पहुंची है, जबकि मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 753 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 16,475 है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,64,060 हो गई, जबकि मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में 753 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 16,475 है, जबकि सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,64,060 हो गई। मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 10 अमवात हुई हैं। अमवात की तादाद 6,139 तक जा पहुंची है। सेहतयाब मरीजों की तादाद 2,64,060 है। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 16,475 है। मरीजों की कुल तादाद 2,86,674 तक जा पहुंची है। मुल्क में कोरोना के 730 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सोहराब गोठ बस अड्डे के करीब ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाबाक हो गए। जाबाक अफराद की लाशें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दी गई हैं। यह हादसा सुजुकी मज़ा और रक्शे में तसादुम के नतीजे में पेश आया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस का ये मौक़िफ़ है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, कराची के इलाका सोहराब अल आसिफ है, जहाँ पे बस अड्डा है, उसके करीब जो है ट्रैफिक हादसा पेश आया है। ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद जो है जाबाक हो गए। जाबाक अफराद की लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा सुजुकी मज़दा और रिक्शों में तसादुम के बायस पेश आया था। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया था, जबकि पुलिस ने मज़दा ड्राइवर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। पाक वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस हसास इदारों ने असली दुश्मन भारत की एक और जारहियत नाकाम बना दी। हसास इदारों ने भारतीय खुफिया इदारों की जानिब से साइबर हमले के जरिए दिफाई हुकाम के मोबाइल फोन हैक करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार जवानों का एक और कारनामा अजली दुश्मन भारत की एक और नापाक चाल नाकाम बना दी। जनूबी एशिया का थानेदार बनने के झूठे ख्वाब सजाए मूदे की दहशतगर्द फौज सरहदी महाजों पर मुंह की खाने के बाद अब साइबर दहशतगर्दी की राह पर चल पड़े। भारतीय खुफिया इदारों ने पाकिस्तान के दिफाई हुक्काम के मोबाइल फोन और आलात हैक करके अहम राज चुराने का नापाक मंसूबा बनाया। लेकिन पाक वतन के जरी पासबान है, हर दम तैयार और दुश्मन की किसी भी बदमाशी का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत से आरास्ता। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया इदारों की जानिब से दिफाई हुक्काम के खिलाफ मुतअद्दिद साइबर हमले किए जाने थे, जिनमें उनके मोबाइल फोन और दीगर आलात हैक करने का मंसूबा शामिल है। मुल्क के हसास इदारों ने दुश्मन एजेंसियों के मुख्तलिफ टारगेट की तहकीकात की और साइबर हमलों को रोकने के लिए हर किस्म के जरूरी हिफाजती इंतजामात कर दिए। हसास इदारों ने एडवाइजरी जारी करके तमाम हुकूमती इदारों को भी दुश्मन मुल्क के साइबर हमलों से खबरदार करते हुए सिक्योरिटी के इक़दाम करने की ताकीद की। मुल्क के हसास इदारे चौकस हैं और दुश्मन मुल्क के किसी साइबर हमले समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर भरपूर नजर रखे हुए हैं। दुश्मन जान ले पलट कर जवाब ऐसा मिलेगा कि फैंटास्टिक टी की एक बार फिर याद आएगी। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. गुस्ताखाना फेसबुक पोस्ट पर भारत में हंगामे फूट पड़े। पाकिस्तान का भारतीय रियासत कर्नाटक के शहर बेंगलोर में गुस्ताखाना सोशल मीडिया पोस्ट पर शदीद एहतजाज हुआ। गुस्ताखाना पोस्ट भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और अक़लियतों को निशाना बनाने की अक्कास है। कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाली रुकन असम्बली सिरीवेनास मर्थी के भतीजे ने फेसबुक पर एक पोस्ट में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिस पर बेंगलोर के मशरकी इलाके में हंगामे फूट पड़े और हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तिल अफराद ने बेंगलोर में वाक़या कांग्रेस रहनुमा सिरीवेनास मर्थी के घर को आग लगा दी, जबकि घर के करीब खड़ी गाड़ियों को भी नजरे आतिश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हंगामों के दौरान 24 गाड़ियों और तकरीबन 200 मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी गई।
जबकि पुलिस ने मुश्तिल मुजाहिरीन को काबू करने के लिए फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की, जिससे 3 अफराद हलाक हो गए। बेंगलोर पुलिस का कहना है कि फेसबुक पर तौहीन आमेज पोस्ट करने वाले रुकन असेंबली के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान का भी भारतीय शहरी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज पोस्ट पर शदीद एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को पाकिस्तान की शदीद मजम्मत से आगाह किया गया। उन्होंने कहा कि गुस्ताखाना पोस्ट भारत में बढ़ते इस्लाम फोबिया और अकलियतों को निशाना बनाने की अक्कास है। विफाकी दारुल-हुकूमत में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से हब्स का खात्मा और मौसम सुहाना हो गया। अब तक 14 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है आज मतला, अबर आलूद और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। जी असलम। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बाद मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। गुज़श्ता रोज भी इस्लामाबाद में बारिश हुई थी, लेकिन शाम के वक्त जो है वो हबस इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा हो गया था, गर्मी जो है वो महसूस हो रही थी। लेकिन सुबह सवेरे तकरीबन 5:45 बजे यहाँ पे बारिश जो है वो शुरू हुई है, जिसके बाद काफी ज्यादा मौसम जो है वो अच्छा हो गया। मेरा कैमरामैन बिलावल अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त भी मौसम जो है इस्लामाबाद का बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सीन है। पहाड़ जो है वो बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं, पहाड़ों में जो है हमें बादल जो है वो तैरते भी सुबह के वक्त नजर आ रहे थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मजीद जो है वो बारिश है। आज सारा दिन जो है वो मतला अबर आलूद रहेगा। इस वक्त अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूं तो दर्जा हरारत जो इस्लामाबाद का है वो रिकॉर्ड किया गया है 26 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत है। 97 जो है वो यहाँ पे नमू है, इसमें नमी जो है वो इस्लामाबाद के दर्जा हरारत में है। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि 11 किलोमीटर की रफ्तार से जो हल्की जो हवा भी यहाँ पे चल रही है। मौसम बहुत अच्छा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मजीद भी बारिश होगी। अगर मैं गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश की बात करूं तो 22 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी और आज सुबह जो बारिश हुई है वो तकरीबन 14 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है इस्लामाबाद में। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो बलाई इलाके हैं वहां पर भी बारिश होगी, लेकिन इस्लामाबाद में जो मजीद बारिश है रात के वक्त जो है वो ज्यादा बारिश का बताया गया है। हमने ये देखा है कि गुज़श्ता 2-3 दिन से सुबह के वक्त और रात को जो है वो बारिश होती है, दिन को जो है गर्मी हो जाती है, लेकिन आज जो है मतला आबार आलूद रहेगा और मौसम ऐसे ही खुशगवार रहेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोकर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बादल बरस पड़े। शाहराह फैसल, कारसाज, गुलशन इकबाल, सिविक सेंटर, एम.ए. जिन्ना रोड पर बारिश हुई, जबकि खारादर, टावर, माड़ीपुर, करीमाबाद, लियाकताबाद, जेल रोड और बहादुराबाद में बारिश हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बादल बरस पड़े। शाहराह फैसल, कारसाज, गुलशन इकबाल, सिविक सेंटर, एम.ए. जिन्ना रोड, खारादर, टावर, माड़ीपुर, करीमाबाद, लियाकताबाद, जेल रोड और बहादुराबाद में बारिश हुई है। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई करने के इल्जाम में गिरफ्तार नून लीग के कारकुनान की जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्तों पर समाअत आज हो रही है। अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर रखी है। पुलिस ने मरियम नवाज की नए पेशी के दौरान हंगामा आराई करने वाले गिरफ्तार 58 मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को जिला कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। गिरफ्तार मुलजिमों में साबिक रुकन असेंबली और टिकटॉक स्टार भी शामिल थे। पुलिस ने मुलजिमान से तफ्तीश के लिए उनकी जिस्मानी रिमांड की, जबकि मुलजिमों के वकला ने मुखालफत की और इसे बिला जवाज करार दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और तमाम मुलजिमों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने मुलजिमों की रिहाई के लिए दायर जमानत की दरख्वास्त पर 13 अगस्त के लिए नोटिस जारी करते हुए पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। नाब में पेशियां जारी। नाब लाहौर ने तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली मलिक करामत खोखर को आज सुबह तलब कर लिया। आमदन से जायद असासाजात केस में पूछगछ होगी। मलिक करामत खोखर से मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का रिकॉर्ड तलब किया गया है। बाकायदा तौर पर नैब की जानिब से नोटिस भी जारी किया गया है। तहरीक इंसाफ के MNA को सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कराची में के इलेक्ट्रिक के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। शहर के बेशतर इलाकों में गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग का सिलसिला अब भी जारी है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक ने जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया है। अब भी शहर के मुतादिद इलाकों में जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 8 से 10 घंटे की जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है।
जो इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं उनमें मलीर, लांडी, कोरंगी, कायदाबाद, औरंगी टाउन, सरजानी और इससे मौलिका दीगर इलाके जो हैं वहाँ पे लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसके अलावा अंशोली, पीसीएचएस सोसाइटी, जमशेद रोड, सदर टाउन, लाइन्स एरिया, यहाँ भी बिजली की आग मचोली का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहरी शदीद परेशान हो गए। बिजली नहीं होती तो लोगों को जो है पानी के मसले का भी सामना करना पड़ रहा है। जब बिजली नहीं होती तो पानी की मोटर नहीं चलती है तो लोगों के घरों में पानी भी ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो दोहरा अजाब जो आवाम पे डाला जा रहा है वो ओवर बिलिंग का डाला जा रहा है। जब 8 से 10 घंटे 12 घंटे की गैर लानिया लोड शेडिंग होती है तो उसके बावजूद भी लोगों को जो है भारी भरकम बिल दे दिए जाते हैं, जिससे लोग जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इस वक्त भी कि मैं खुद के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अब भी जो है वो लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी जब उनसे शहरियों से जो बात हुई उनका यही कहना था हमारे जो है 12 से 14 घंटे की जो है लाइट होती नहीं है, गैर लानिया लोड शेडिंग होती है, उसके बावजूद हमें जो है 15,000, 18,000, 20,000 के जो है बिल थमा दिए जाते हैं। हम ये बिल किस तरह अदा करें और जब हम सही कराने आते हैं तो उनकी एक किस्सें कर दी जाती हैं, उसको बाकायदा ख़त्म नहीं किया जाता। वो बिल उनको जितना बिल आता है उनको वही बिल अदा करना पड़ता है, जिसके बायस वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मोनिस अलवी ने करंट से हलाकत के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर करवा ली। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान को फी मुकदमा 50,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया। डिफेंस में करंट लगने से जान बहक होने वाले नौजवान के अहले खाना ने CEO के इलेक्ट्रिक समेत 4 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बल्दिया उस्मा कराची ने इश्तिहारी दीवारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। क्लिफ्टन में शहर की सबसे बड़ी इश्तिहारी दीवारें गिरा दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बल्दिया उस्मा कराची का एक्शन। एंटी इंक्रोचमेंट अमला भारी मशीनरी के हमरा क्लिफ्टन पहुंचा और सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की सरबराही में शहर की सबसे बड़ी इश्तिहारी दीवारें मिस्मार कर दी। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक जहां कहीं इश्तिहारी दीवारें होंगी वहां कार्रवाई करेंगे। कराची में क्लिफ्टन पे ब्लॉक 4 पे कराची की सबसे बड़ी 3 दीवारें जिस पे इश्तिहार लगते थे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जो है वो आज मस्मार किया है। तीनों दीवारों पर आज काम किया है, जिसमें से 2 दीवारें मुकम्मल मस्मार कर दी गई हैं और 1 दीवार पे काम हो रहा है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कर रहा है और आज की कार्रवाई के अंदर इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर, इलाके की पुलिस और लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ये कार्रवाई में मसरूफ है। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक शहर भर से इश्तिहारी दीवारों के खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया। शाहिद इजाज, सच टीवी, कराची। शहर कायद में पहले सड़कों और गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा था, लेकिन अब खेल के ग्राउंड भी इस गंदे पानी से भर चुके, जिसकी वजह से सेहतमंद सरगर्मियां खत्म हो गईं। नौजवानों का मनफी सरगर्मियों की तरफ से रुझान बढ़ने का खदशा पैदा हो चुका है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। ये किसी झील या दरिया के मनाजिर नहीं बल्कि गुलशन इकबाल के इलाके मुजाहिद कॉलोनी का फुटबॉल ग्राउंड है। इलाका मकीनों के मुताबिक मैदान सेवरेज के गंदे पानी से भर गया है, जिसके बाद इसमें फुटबॉल के मैचेस मुकम्मल बंद हो गए हैं। ग्राउंड की सूरत-ए-हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा गटर का पानी है। जो अब रिसेंटली बारिशें हुई हैं वो सारा का सारा पानी गटर का वो ग्राउंड में, और यहाँ के इलाके के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर खेल नहीं सकते। कचरा पड़ा हुआ है, ग्राउंड में पानी खड़ा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कचरे की वजह से नहीं खेल सकते। रोड भी सारा पानी का भरा हुआ है, गटरें बंद है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि इस ग्राउंड में इलाके के तमाम नौजवान खेल की सरगर्मियों में मसरूफ रहते थे, लेकिन अब वो इससे महरूम हो गए हैं। गरीब नवाज क्लब है, यहाँ पे टीम है, वो खेलती है। अब खेलना बंद है, कहाँ से खेलेगी? गटर के अंदर गटर का पानी इतना जमा हुआ, कहाँ से खेलेगी? बिल्कुल नहीं खेल सकती। ये हमारे नाजिम का काम है सेट करवाए, लेकिन नाजिम सिर्फ अपने मसले ठीक कराएगा और अपनी पंचायतें ठीक कराएगा। उसके पास जाओ, बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है।
برائے مہربانی اس کے اوپر غور کیا جائے، کیونکہ سب کی سہولت کے لیے بچے کھیلتے ہیں، یہاں پہ بڑے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اب لوگ سارا پانی بھرا ہوا ہے، اس طریقے سے بہت تکلیف ہے، بہت مسئلے ہیں۔ مجاہد کالونی کے رہائشیوں نے کہا کہ حکومت سیوریج کی لائن کو ٹھیک کرنے کے علاوہ گراؤنڈ سے پانی کا خاتمہ کرے تاکہ یہاں کے نوجوان دوبارہ کھیل کود جیسی صحت مندانہ سرگرمیاں شروع کر سکیں۔ انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کے باعث کراچی کے کھیل کود کے گراؤنڈ بھی سیوریج کے پانی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر گراؤنڈ کو پانی سے صاف کیا جائے تاکہ دوبارہ صحت مندانہ سرگرمیاں شروع ہو سکیں۔ کیمرہ مین سراج عباس کے ساتھ اشرف سولنگی، سچ ٹی وی، کراچی۔ حکومت کو قانونی محاذ پر بڑی کامیابی، سپریم کورٹ نے JIDC کے خلاف کمپنیز کی تمام اپیلیں خارج کر دی۔ کمپنیز کو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے اس کی مد میں 417 ارب روپے ادا کرنے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے 20 فروری کو محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ حکومت کو قانونی محاذ پر بڑی کامیابی، سپریم کورٹ نے JIDC کے خلاف کمپنیز کی تمام اپیلیں خارج کر دیں۔ کمپنیز کو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی مد میں 471 ارب روپے ادا کرنے ہوں گے۔ سہرش خان سے تفصیلات جانیں گے۔ سہرش، بتائیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ نے JIDC کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے JIDC کے خلاف کمپنیوں کی تمام اپیلوں کو خارج کر دیا ہے، جس کے بعد اب کمپنیوں کو اس مد میں تقریباً 417 ارب روپے ادا کرنے ہوں گے۔ بتاتی چلوں کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 20 فروری کو اس کیس کا فیصلہ سنایا تھا، جس کے اندر عدالت عظمیٰ نے کہا تھا کہ تمام وکلا اپنی تحریری معلومات جمع کروا سکتے ہیں۔ 20 فروری کو محفوظ شدہ فیصلہ آج سنایا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتا چلوں کہ حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے JIDC کے 220 ارب روپے معاف کر دیے تھے اور اپوزیشن کی تنقید پر حکومت نے آرڈیننس واپس لے لیا تھا۔ جی صحیح، بہت شکریہ سہرش خان آپ کا۔ برصغیر میں ایک آزاد مسلم مملکت کے قیام کا وہ دیرینہ خواب جو مسلمانان ہند گزشتہ 2 صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، 14 اگست 1947 کو شرمندہ تعبیر ہوا۔ اس خواب کی تعبیر ایک فرد واحد کی چشم کش محساس کا نتیجہ تھی، اور وہ فرد واحد قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جنہوں نے اس ملک کی تشکیل کے لیے اپنی مہلک بیماری کو چھپائے رکھا اور اسے پاکستان کی تخلیق میں آڑے نہیں آنے دیا۔ ہے کہ جب برصغیر کے مسلمان اپنی بقا اور سلامتی کی جانب سے بڑی حد تک مایوس ہو چکے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح نے تدبر، فراست، غیر متزلزل عزم، سیاسی بصیرت اور بے مثل قائدانہ صفات سے کام لے کر مسلمانوں کو متحد کر دیا اور 7 سال کی مختصر مدت میں مطالبہ پاکستان کی ایسی وکالت کی کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ لوگ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ جناح تپ دق جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد زیارت میں صحت بگڑنے پر جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کو بتایا کہ انہیں تپ دق کا مرض لاحق ہے تو جناح نے جواب دیا کہ وہ 12 برس سے جانتے ہیں اور اسے اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو ان کی موت کا انتظار نہ کرنے لگ جائیں۔ برصغیر کی جدوجہد آزادی کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنفین لیری کولنز اور ڈومینک لاپیا کہتے ہیں، اگر ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی ایک کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو ممبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر پٹیل کے سینے اور دفتر میں محفوظ تھا، تو شاید پاکستان کبھی مارز وجود میں نہ آتا۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی۔ ڈاکٹر پٹیل نے جناح کی درخواست پر ان ایکس ریز کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا۔ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کی وفات کی خبر سن کر کہا تھا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی، اگر کسی نے انہیں بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں ہی فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا۔ راستے کا پتھر صرف مسٹر جناح تھے۔ پاکستان بننے کے بعد نومولود مملکت کے مسائل ایسے نہ تھے جن کو قائد اعظم نظر انداز کر دیتے یا دوسروں پر چھوڑ دیتے۔ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کا تعین اور اس پر عمل درآمد یقینی بنانا، آئین ساز اسمبلی، سرکاری ملازمین اور مسلح افواج کو نہ صرف ان کے فرائض سے آگاہ کرنا بلکہ ان کو یہ باور کرانا کہ قوم ان سے کیا توقعات رکھتی ہے، ایسے مسائل پر بھرپور توجہ دی۔ قائد اعظم اپنی عدالت کے سبب قیام پاکستان کی پہلی سالگرہ کی تقریبات میں شرکت سے معذور تھے۔ اس موقع پر آپ نے قوم کے نام ایک پیغام میں فرمایا، پاکستان کا قیام ایک ایسی حقیقت ہے جس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ دنیا کی ایک عظیم ترین مسلمان ریاست ہے، اس کو سال بسال ایک نمایاں کردار ادا کرنا ہے، اور ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں ایمانداری، مستعدی اور بے غرضی کے ساتھ
पाकिस्तान की खिदमत करना होगी। बहैसियत गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म सिर्फ 1 रुपया बतौर तनख्वाह लिया करते थे। सरकारी फंड से कभी अपनी जात पर 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। अपनी अदालत के दौरान कायद ने मुआलजिन के इसरार के बावजूद बरतानिया और अमेरिका से डॉक्टर बुलवाने से इनकार कर दिया कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। उन्होंने महाजर कैंपों की जाती तौर पर देखभाल की और महाजरीन को जाती फंड में से 3 लाख रुपए इमदाद दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीरियों से बेपनाह मोहब्बत रखते थे और इतनी ही मोहब्बत कश्मीरियों को भी उनसे थी। कायद-ए-आज़म ने कश्मीरियों को पाकिस्तान की शहर भी करार दिया था। आपने कश्मीर के 4 दौरे किए। कायद-ए-आज़म ने ब्यूरोक्रेसी को चंद नसीहतें की जिनमें अफसरान को लोगों का खिदमत गुजार समझते हुए बेलौस खिदमत को अपना नस्बुल ऐन बनाने, लोगों से मामलात करते वक्त मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना रवैया अख्तियार करने और उन्हें किसी हालत में सियासी दबाव में नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे रिश्वत, अकरबा परवरी और सिफारिश जन्म लेती है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने कायद-ए-आज़म की ये बातें भुला दी। ब्यूरोक्रेट कायद-ए-आज़म के फरामीन को फरामोश करके जाती मफादात की तरफ राग़िब हो गए। नतीजा ये निकला कि मुल्क को अरबों डॉलर के कर्जों के बोझ तले दबा दिया और लूट खसूट में मशगूल हो गए। कायद-ए-आज़म जैसा पाकिस्तान चाहते थे, इसके लिए जरूरी है कि हम आज एक बार फिर कायद-ए-आज़म के फरमुदात का जायजा लें और मुल्क और कौम के मफादात के लिए उन्हें ही मशले राह बनाएं, क्योंकि हकीकी और एक ही पाकिस्तान वही था जिसके खतूत कायद-ए-आज़म उस्तवार करके गए थे। शहर लाहौर में 14 अगस्त की तैयारियां उरूज पर हैं। जगह जगह झंडियों, बैजेस के अलावा कौमी परचम के रंग के ड्रेस भी स्टॉल्स पर सज चुके हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी यौम आजादी के लिए खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानेंगे फरहान एजाज से। जी फरहान। जी बिल्कुल, जिंदा दिलों के शहर लाहौर में जो है जश्न आज़ादी की तैयारियां नहायत अरूज पर हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो जश्न आज़ादी, योम आज़ादी की खरीदारियों में मसरूफ लग रही हैं। जहां पे बड़े जो है वो खरीदारी कर रहे हैं तो वहीं पे छोटे बच्चे भी हमें दिखाई दे रहे हैं जो 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से इंतहाई पुरजोश हैं। उनसे बात कर लेते हैं और वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, बच्चे जो है आपके साथ मौजूद हैं, कैसे जो 14 अगस्त मनाएंगे, क्या कह रहे हैं बच्चे? ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ है। 14 अगस्त भी मनाए और एहतियात भी करें। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी आप जो है असद जलाली परचम को बाइक पे लगा रहे हैं, कैसे मनाएंगे इस साल, कितना जोश और खरोश है? इसके लिए यही अर्ज करना चाहूँगा जी, पाकिस्तान हमारी आन बान शान है और पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये एक नहायत खुशी का दिन है। मुझे मेरे बेटे ने कॉल करके स्पेशली कहा कि मेरे लिए झंडियाँ लेकर आएँ, तो मैं स्पेशली रुका हूँ और ये उसके साथ खरीद के मैं लेके जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, शहरी इंतहाई पुरजोश का यही कहना है कि इस साल जो है पाकिस्तानी परचमों के साथ साथ जो है कश्मीर के परचम भी अपने घरों की छतों पर लहराएंगे। यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही है। बड़े से बड़े परचम भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ बच्चे जो है झंडियाँ और बैचेस खरीद रहे हैं। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर उनकी जुबानों पर है। उनका यही कहना है कि इस साल जो है वो योम आज़ादी जो है वो भरपूर अंदाज से मनाएंगे, मुनफरिद तरीके से मनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया फरहान एजाज। नए पाकिस्तान में जश्न आज़ादी के मौके पर सकाफत को उजागर करने वाली आज़ादी ट्रेन इस साल भी नहीं चलाई जाएगी। वजारत रेलवे की जानिब से इंतहाई अहम इवेंट फरामोश करा दिया गया। हमारे साथ नबील नकवी मौजूद है। नबील बताइएगा, इवेंट को क्यों फरामोश किया गया? जी बिल्कुल, नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान की आज़ादी ट्रेन नहीं चलेगी। वो शेख रशीद अहमद साहब जो हर वक्त नई ट्रेनें चलाने की बातें करते हैं, गुन गाते हैं, इस साल उन्होंने आज़ादी ट्रेन को भी जो है इस साल ब्रेक लगा दी है। वजारत रेलवे की जानिब से ज़राए के मुताबिक आज़ादी ट्रेन के लिए जो फंड्स ही जारी नहीं किए गए हैं। इस तरीके से वजारत रेलवे की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर इंतहाई अहम इवेंट जो है जो चारों सूबों में जाया करता था उसको फरामोश कर दिया गया है। आज़ादी ट्रेन जो गुज़िश्ता दौर में ख्वाजा साद रफ़ी साहब के दौर में चली थी, नए पाकिस्तान के दूसरे साल में भी जो है वो आज़ादी ट्रेन नहीं चल पा रही। आज़ादी ट्रेन को खास तौर पर नई नस्ल के लिए जो है वो सकाफत उजागर करने का बेहतरीन जरिए समझा जाता था। आज़ादी ट्रेन पर जो चारों सूबों की जो सकाफत थी वो उजागर की जाती थी। चारों सूबों में इंतहाई अहम मंजिलों की वहाँ पे उस आज़ादी ट्रेन पर जो है तारीखी मंजिलों की जो इमारतों की जो है उस पर मॉडल्स बनाए जाते थे। जो हमारे शोधा हैं, जो हमारे पाक फौज के शोधा हैं और जिन्होंने आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता था, सलाम पेश किया जाता था। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब और उनकी इंतजामिया की जानिब से इस इंतहाई
इंतहाई अहम इवेंट को भी जो फरामोश कर दिया गया है। आज़ादी ट्रेन इस्लामाबाद से रवाना होकर पेशावर, मुल्तान, पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सखर, भावलपुर से होती हुई, कोयटा से होती हुई कराची इख्तिताम पजीर होती थी। आज़ादी ट्रेन पर चारों सूबों की जो सकाफत थी वो उजागर की जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान की जो है आज़ादी ट्रेन नहीं चलाई जा रही। और इस दफ़ा भी इंतहाई अहम इवेंट जो समझा जाता था जश्न आज़ादी के मौके पर, जिसको लोग दूर दराज से देखने के लिए रेलवे स्टेशन से आते थे और उनको अपने कैमरों की शक्ल की मदद से जो है उसको महफूज किया करते थे, लेकिन वजारत रेलवे की जानिब से फरामोश कर दिया गया है और नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान की जो आज़ादी ट्रेन वो नहीं चलेगी। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां शायाने शान तरीके से जारी और सारी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स का रुख कर लिया है। स्टॉल पर सजे सब्ज हिलाली परचम और जश्न आज़ादी के हवाले से अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। वहीं पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ शेखुपुरा मियां मेहरान एजाज। मेहरान, बताइएगा शहरियों के जश्न आज़ादी के हवाले से क्या जज्बात हैं और उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान में बड़े पुरजोश तरीके से मनाया जाता है। जिला शेखुपुरा में भी बड़े पुरजोश तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हैं। आइए उनसे जानते हैं वो 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं और बच्चों के लिए क्या खरीद रहे हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हम इसे हर साल इसी तरह मनाते हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है जो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या खरीदने आए हैं और पाकिस्तान के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अवाम को। जी घर से मैं 14 अगस्त के हवाले से चीज़ें खरीदने आया हूँ। जी मेरे साथ छोटा भाई भी है जो यहाँ गरीब बैज लाइटिंग और घर छत पर सजाने वाला झंडा वो भी हम यहाँ खरीदने आए हैं। जी बिल्कुल, बाजार में बहुत ज़्यादा रश भी देखने में नज़र आ रहा है। शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त को हम बड़े पुरजोश तरीके से घरों पर झंडे लहरा कर और घरों में झंडियाँ लगा कर मनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया मेहरान एजाज। शहर कायद में मादरे वतन का यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। सड़कों, गली कूचों, हर सू सब हराली परचम नजर आने लगे। अब्दुल कदीर राना से जानेंगे। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा। 14 अगस्त का दिन करीब आन पहुंचा। शहर कायद में यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियों में भी मजीद तेजी आ गई। शहर कायद की सड़कों, गली मोहल्लों में अब सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई है। जगह जगह लगे खुसूसी स्टॉल्स पर भी शहरियों का रश लग गया, जो कौमी झंडे के अलावा बैजेस, टोपियां, चूड़ियां, कलाईबंद, कड़े, बाजे और जश्न आज़ादी के हवाले से सब्ज और सफेद रंगों में बनी दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। कौमी परचम के रंगों में बने बच्चों के लिबास भी शहरियों के लिए खुसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। लोगों का कहना था कि उनके लिए पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, मुल्क है तो हम सब हैं, इसलिए इसकी आज़ादी के दिन को भरपूर शायाने शान तरीके से मनाएंगे। बहुत अहमियत रखता है भाई, हमारी आज़ादी का दिन है। माशाल्लाह से बहुत कुर्बानियों के बाद हमको ये मुल्क मिला है, तो हमें तो कदर करनी है इसकी। इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे। पाकिस्तानी होने का सबूत देके और यौम आज़ादी हम भरपूर तरीके से मना रहे हैं। मैं हर साल जो है ना फेस पेंटिंग करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारा मैंने सामान लेके रखा हुआ है और चांद रात को और 14 अगस्त को पूरे यहाँ जौहर मोड़ से लेके जौहर चौरंगी तक माशाल्लाह मेरी बेटी है फाकिया मेरे साथ होती है। हम लोग तकरीबन 100, 200, 300, 400, 500, 1000 लोगों को फेस पेंटिंग करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए कि ताकि लोगों को शऊर हो, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हैं ताकि लोगों को पता लगे हमारे यौम आज़ादी है, हमारे मुल्क की आज़ादी है। जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ पीछे दी हैं उन्हें हम याद करें और अपने बच्चों को भी ये आगे बताएं कि आगे हमारे मुल्क की तरक्की के लिए इसी तरह उन्हीं के नक्शे कदम पे चलें। उधर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी यौम आज़ादी के लिए इंतहाई पुरजोश हैं, जो कहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। मुल्क के लिए जान भी दे सकता हूँ क्योंकि मेरा ख्वाब है मैं आर्मी बनूं। मुझे अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, मैं अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त के दिन के लिए यौम आज़ादी के हवाले से दीगर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी तरतीब दिए जा रहे हैं। यौम आज़ादी के जश्न को भरपूर तरीके से मनाने के साथ साथ हमें बाहमी इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए इस मुल्क की तरक्की के लिए भी काम करना चाहिए। कैमरामैन फैजान खान के साथ अब्दुल कदीर राना, सच टीवी, कराची। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।